Last week we began to speak on desiring spiritual gifts. पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था आत्मिक वरदानों की लालसा के बारे में, इच्छा के बारे में. And we spoke specifically about one particular gift, the gift of prophecy. और हमने एक खास दान के बारे में बात करी थी, भविष्यवाणी करने वाला दान. This is part of the gifts of the Holy Spirit, or rather the manifestations of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के जो दान हैं उसके प्रकट होने का या उसका एक हिस्सा मान सकते हैं. Which began to happen from the time the Lord Jesus Christ went back to God the Father. और ये तब से शुरू हुआ जब प्रभु यीशु मसीह वापस अपने पिता के पास चले गए. While he walked this earth in flesh and blood, जब वो शरीर में इस पृथ्वी पर चल रहे थे, Luke records in Luke 11:11-13, और लूका लिखता है इसको लूका 11वां अध्याय 11 से 13 में, quoting the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, where it's written, वहां ऐसा लिखा है, which of your fathers when your son asked for a fish will give him a snake? कि तुम में से ऐसा कौन सा पिता है जो जिसका बेटा उसे मछली मांगे तो उसको वो सांप दे दे, or he asks for egg, you will give him a scorpion? या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे दे. If you who are evil know how to give good gifts to your children, सो तुम जो बुरे होकर अपने लड़कों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को जो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा. Meaning, when earthly people, imperfect people give the good gifts to their children, how much more the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? तो इसका मतलब यह है कि जब संसार के लोग जो कि दुष्ट होने के बाद अपने बच्चों को अच्छी चीज देते हैं, तो हमारा पिता अपने बच्चों को, अपने मांगने वालों को अपनी पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा. Similarly, in the 7th chapter of Matthew, verse 9-11, we read, और इसी तरह से मत्ती 7वां अध्याय 9 से 11 में हम पढ़ते हैं, very similar statement but slightly different. वही बात है पर थोड़ा सा फर्क है उसमें. Here Jesus said, which of your fathers when a son asks for bread will give him a stone? वो कहता है तुम्हें से ऐसा कौन सा मनुष्य है उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, And if he asks for fish, will give him a snake? वो मछली मांगे तो उसे सांप दे. If you who are evil know how to give good gifts to your children, सो तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, how much more will the Heavenly Father give good gifts to those who ask him? तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा. What's the difference between Luke 11:11-13 and Matthew 7:9-11? तो लूका 11वां अध्याय 11 से 13 में और मरकुस 7वां अध्याय 9 से 11 में क्या फर्क है. Both talk about asking the Heavenly Father. दोनों है स्वर्गीय पिता से मांगने की बात बता रहा है. Luke talks about receiving the Holy Spirit, और लूक जो बात है पवित्र आत्मा को पाने की बात करते हैं, and Matthew talks about receiving good gifts. और मत्ती जो है वो अच्छी वस्तुओं की बात करते हैं. Which means when you are anointed by the Holy Spirit, we get good gifts. तो इसका मतलब जब हम पवित्र से अभिषेक पाते हैं तो हमें अच्छे वस्तु, अच्छे दान मिलते हैं. Gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के दान. And the Lord spoke that before the crucifixion, before he went back to God the Father, he is encouraging and preparing people to depend upon the Heavenly Father for these gifts and for the Holy Spirit. तो प्रभु यीशु मसीह से पहले कि स्वर्ग को जा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो अपने स्वर्ग के पिता से ये अच्छी वस्तुएं, ये आत्मिक वरदान जो है उसके लिए मांगे. After Christ was crucified, put in a tomb and rose again on the third day, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, दफनाया गया, वो तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठे, after 40 days he went back to God the Father, he ascended to God the Father. और उसके 40 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास ऊपर स्वर्ग को उठा लिए गए. And 10 days later, on the 50th day after Passover, he began to pour the Holy Spirit upon people. और उसके 10 दिन बाद, 50वें दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह जो है वो पंतेकुस्त के दिन के बाद उसमें अपने लोगों पे पवित्र आत्मा डालने शुरू करा. When people from all over the empire came to Jerusalem, they found these Galileans, these disciples of Christ, speaking in other tongues and then being anointed by the Spirit in many ways. और ये जो लोग वहां पे जो अलग अलग जगहों से, दूसरी जगहों से आए हुए थे यरूशलेम में, उन्होंने जब इन लोगों को देखा तो वो बोला हमारी भाषा में ही बात कर रहे हैं. And then Peter explains to all these people, और पतरस फिर इन सब लोगों को इसके बारे में समझाते हैं as to what has happened. कि हुआ क्या है. Acts 2:33. प्रेरितों का काम दूसरा जो है उसकी 33वीं आयत. Exalted to God's right hand, he received from the Father the promised Holy Spirit, whom he has poured out upon us. इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ के से सर्वोच्च पद पाकर और पिता का वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, उसने यह उंडेल दिया.
So the Lord Jesus Christ received from the Father the promised Holy Spirit, whom he pours out upon his people. Along with the anointing come the gifts of the Spirit. और प्रभु यीशु मसीह पिता के जब दाहिने हाथ में बैठ गए तो उसने पवित्र आत्मा को जो है लोगों को डाला और उसके साथ साथ आत्मा के दूसरे दान भी दिए. So today we have the privilege of not only having salvation, also having resources to serve God in this world. तो हमारे पास इस समय ना केवल उद्धार है पर परमेश्वर ने हमारे को संसार में उसकी सेवा करने के लिए बहुत सारे साधन भी दिए. The anointing is given to us for us to serve him, to glorify his name and encourage and build up people. परमेश्वर ने हमें ये अभिषेक किया है, हमारे को ये दिया है कि हम लोगों को उसके बारे में बताएं, उनको आशीष दें इन दानों के द्वारा से. The Apostle Paul identified 9 gifts of the Holy Spirit in 1 Corinthians 12 chapter 8 to 10. और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से 10 में पौलुस जो है ये आत्मा के जो दान है, 8 जो दान है उसके बारे में बताता है. 9 gifts. 9 दान. And one among them is the gift of prophecy. और उसमें से एक है भविष्यवाणी का दान. Which is basically hearing from God and speaking out. और ये इसका मतलब है कि परमेश्वर से सुनना और उसको बताना. And he exhorted the church in Corinth to desire spiritual gifts. और उसने कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहन दिया कि वो इस लालसा में रहें, इन दानों की अभिषेक लालसा में रहें. Especially the gift of prophecy. और खासकर भविष्यवाणी का दान. 1 Corinthians 14:1. और पहला कुरिन्थियों 14:1 में हम पढ़ते हैं. 12th chapter he speaks about the gifts of the Spirit. 12वें अध्याय में आत्मा के दानों की बात करते हैं. 13th chapter he speaks about love. 13वें अध्याय में प्रेम के बारे में बात करते हैं. Agape love, godly love, sacrificial love. अगापे प्रेम, बलिदान करने वाला प्रेम, परमेश्वर का प्रेम. And then 14th chapter begins by him writing, follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. और इसलिए 14वें अध्याय की पहली आयत में कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो. To whom is he writing? Writing to the members of the church, ordinary members. और ये किसको लिख रहे हैं? ये कलीसिया के साधारण लोगों को लिख रहे हैं. So anybody can seek to know the will of God, to hear God's voice and speak to people to build up people. तो कोई भी परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है और लोगों को उनको बनाने के लिए उस बात को लोगों को बता सकता है. There are many other gifts that God speaks about in the scriptures. और बहुत से और भी दान हैं जो वचन जो है वो जिसके बारे में बताता है. Now to be able to listen to God, we should be able to discern his voice. तो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें उसकी आवाज की पहचान भी होनी चाहिए. So one more gift we must seek. तो एक और दान है जिसकी हमारे को लालसा रखनी चाहिए. 1 Corinthians 12:10. पहला कुरिन्थियों 12:10. The gift of distinguishing between spirits. और ये परखने वाली आत्मा, परख की आत्माओं को परखने वाली दान. The gift of discernment. और ये है परख की आत्मा. Because to be able to listen to God's voice, you be able to recognize God's voice. तो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए परमेश्वर की आवाज की पहचान होना बहुत जरूरी है. It also is a gift identified among the 9 gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के जो 9 दान हैं उनमें से एक दान ये भी है. In fact, there are 9 manifestations, not necessarily gifts, manifestations. Charismata in Greek. और ये जो है यूनानी भाषा में करिस्माटा है, ये सिर्फ आत्मा का उदान नहीं पर इसकी आत्मा के दानों का प्रगटीकरण है. Yeah, so one among them was prophecy, which I shared last week. और उसमें से एक जो था भविष्यवाणी करने वाली बात थी, उसकी बार पिछली बार हमने मनन किया. And these 9 manifestations are, first of all, the word of wisdom. तो उसमें से जो 9 जो दान है उसमें है बुद्धि की आत्मा. The word of knowledge. और ज्ञान का वचन का ज्ञान. Gift of faith. विश्वास का दान. Gifts of healing. चंगाई का दान. Prophecy. भविष्यवाणी का दान. Miraculous powers. और आश्चर्यकर्म करने की सामर्थ. Distinguishing between spirits. आत्माओं को परखने की का वरदान. The gift of tongues. और अन्य भाषा बोलने वाला दान. And interpretation of tongues. और उन भाषाओं का अर्थ बताने का दान. Now among these, the gift of discerning of spirits is very, very important for us. तो इसमें से आत्माओं का परख का जो दान है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए. It's not a very glamorous gift. और ये कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि लोग बड़ा उसको देखने में पसंद करने वाला हो. Miraculous powers is much sought after gift. और एक आश्चर्य कर्म करने वाला जो दान है उसके पीछे तो बहुत लोग रहते हैं.
Gifts of healing are very sought after. Everyone likes to have gifts of healing. और लोगों को चंगाई करने वाला दान, इसके पीछे भी लोग बहुत इस दान के पीछे रहते हैं। But how many people seek the gift of discerning? और कितने लोग हैं जो आत्मा की परख के दान को मांगते हैं। Now, to be effective in the gift of prophesying, you should be able to listen to God and discern His voice. तो भविष्यवाणी का दान करने के लिए कि आप परमेश्वर की आवाज सुने और उसको बताएं, उससे के लिए परमेश्वर की आवाज की पहचान होना बहुत जरूरी है। We hear many voices today. आजकल हम बहुत सारी आवाजों को सुनते हैं। We can hear God's voice because we are His children. We have a spirit living inside us, and therefore He speaks to us. हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, हम उसकी संतान है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए वो जब हमसे बात करता है हम उसकी सुनते हैं। In John 10:27, Jesus says, "My sheep listen to my voice." और यूहन्ना 10:27 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज, मेरा शब्द सुनती हैं। We are His children. We can hear His voice because He is a heavenly Father, a God. हम उसके बच्चे हैं, हमारा पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है, इसलिए हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। Every child can recognize the voice of the parent. हर एक बच्चा जो है अपने माँ बाप की आवाज को पहचान सकता है। So as God's people, He speaks to us. He loves to speak to us. और जब परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर हमसे जरूर और पसंद करता है हमसे बात करना। When Stephen testified before the authorities, the Jewish authorities, in Acts chapter 6, verse 10, it says, they could not stand up against his wisdom, or the spirit by whom he spoke. और जब स्टिफनुस को वो जो इजरायली जो यहूदी अधिकारी थे उनके सामने जब खड़ा किया गया तो उसके बारे में लिखा है कि उसके ज्ञान की आत्मा और जिस तरह से वो बात करता था उसका सामना नहीं कर सके। He spoke by the Spirit of God, listened to God and spoke out. उसने परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर की बात सुनी और वही बताया। You could recognize the Spirit of God's voice. और वो परमेश्वर की आवाज को पहचान सकता था। In the same way, all of us being God's children, we can hear His voice, not an audible voice, but Him speaking to our hearts. और हम परमेश्वर के जो बच्चे हैं, हम भी उसकी आवाज को सुन सकते हैं। शायद कानों में ना सुनाई दे, पर अपने हृदय में हम उसकी आवाज को पहचान सकते हैं और सुन सकते हैं। Not only that, we can also hear the devil speak to us. और यही नहीं, हम शैतान भी हमसे बात कर सकता है, उसकी भी हम सुन सकते हैं। For example, when the Lord Jesus Christ asked the disciples, who do people say the Son of Man is? और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में परमेश्वर के मेरे बारे में क्या बोलते हैं? The 16th chapter of Matthew. मत्ती के 16वें अध्याय में। They say that some people say John the Baptist, some people say Elijah, some people say Jeremiah, one of the prophets. तो कहते हैं कि कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है यिर्मयाह या कोई एक भविष्यद्वक्ता है। He asked them, who do you say I am? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? And Peter says, you are the Christ, Son of the living God. और पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And the Lord tells Peter, blessed are you, Simon, son of Jonah. और प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं, शिमोन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है। For flesh and blood didn't reveal this to you, my Father revealed this to you. क्योंकि मांस और लहू ने ये तुझ पे प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पे बताई है। Now, among his disciples, there was always a competition as to who is more blessed, who can drive out demons, who cannot drive out demons, and there were always a competition. और चेलों में एक बड़ा एक प्रतिद्वंदी वो था, कंपटीशन जैसा था कि कौन दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। In the context of this competition, the Lord speaks to Peter in front of everybody. This is revealed to you by my Father in heaven. और इस जब ये बात हो रही है तो प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं सारे चेलों के सामने कि मेरे पिता ने तुझ पे ये बात प्रकट करी है। How happy Peter must have felt. पतरस को कितना अच्छा लगा होगा। In front of everybody, the Lord singles him out as someone who could directly hear from the voice of the Father in heaven. कि सारे लोगों के बीच में से प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि तूने परमेश्वर की आवाज स्वर्ग से जो परमेश्वर की आवाज को सुना है। The Father has revealed this to you. कि मेरे पिता जो स्वर्ग में उसने तुझ पे प्रकट किया है। Meaning you have received a revelation from God the Father. इसका मतलब तूने स्वर्ग पिता से दर्शन पाया। I can imagine Peter looking at the other disciples and saying, or rather thinking, see, did you hear what he said? और शायद पतरस ने दूसरे चेलों की ओर देख के शायद मन में सोचा होगा कि देखा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बारे में क्या बोला। I got direct hotline to the Father in heaven. कि मेरा तो स्वर्गीय पिता के साथ सीधा बात का रास्ता है। But I felt very, very happy that he was singled out for special mention, for special commendation as to some who could hear the voice of the Father. तो शायद उसको इस बात पे घमंड होने लगा होगा कि मेरे को प्रभु ने अलग करके बताया कि मैं जो है परमेश्वर की आवाज सीधा सुन सकता हूँ।
Because they had this competition among themselves. Who can drive out demons, who cannot drive out demons. क्योंकि उनमें आपस में ये एक कंपटीशन था कि कौन दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता. Who will sit right and left hand of Jesus, who will not sit right and left hand of Jesus. कि प्रभु यीशु मसीह के दाएं बाएं कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठ पाएगा. Then the Lord tells these disciples how he's going to go to Jerusalem, going to be arrested and killed and risen from the dead, rise from the dead. और फिर प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं कि कैसे मैं यरूशलेम को जाऊंगा और वहां मुझे पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा और मैं कैसे मुर्दों में से जी उठूंगा. Now Peter says to Jesus, never, Lord, this shall never happen to you. और फिर पतरस कहता है, नहीं प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो. Matthew 16:22. मत्ती 16वां अध्याय उसकी 22वीं आयत. Look what Jesus says now. अब प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं? Get behind me, Satan. कहता है तू मुझसे शैतान मेरे से दूर हो जा. You're a stumbling block to me. तू मेरे लिए ठोकर का कारण है. You don't have in mind the things of God, but the things of men. और क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं, मनुष्य की बातों पे मन लगाता है. Just before that, Peter told Jesus, you are the Christ, Son of the living God. And Jesus said, my Father revealed this to you. Revelation from Father. और इससे थोड़े समय पहले ही प्रभु यीशु मसीह को ने जब पूछा तू मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, तू क्या कहता है, तो उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है और परमेश्वर ने उसकी शाबाशी दी. और यहाँ पे उल्टा हो रहा है. When the Lord says, I'm going to Jerusalem and get arrested and crucified and get killed, now Peter is saying, never, Lord, this shall never happen to you. और जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हम यरूशलेम को जाएंगे, वहां मुझे पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, तो पतरस कह रहा है कि प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो. And the Lord tells Peter, get behind me, Satan. और प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहे हैं, हे शैतान मेरे से दूर हो जा. Because the motivation for him to say, don't go to Jerusalem, this shouldn't happen to you, is from the devil. क्योंकि ये जो बात जो पतरस बोल रहा है कि तू तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, ये शैतान की बात, शैतान उससे बुलवा रहा है. The source of that thought is from Satan. और उसका स्रोत जो है इस बात का, इस विचार का, वो शैतान की ओर से. Because the will of the Father was Christ has to be crucified. Anything against the will of God must be from devil only. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पे मारा जाए, पर अगर उसके विरोध में कोई बात करा तो वो शैतान की ओर से ही है. So Christ is actually addressing Satan through Peter. और पतरस के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह शैतान को बोल रहे हैं. And next sentence is to Peter. और उससे अगला जो वाक्य है वो पतरस के लिए है. You don't have in mind the things of God, but the things of men. क्योंकि तुम जो है परमेश्वर की बातों में मन नहीं लगाते, मनुष्य की बातों में मन लगाते हो. To have in mind the things of God, you'll accept what I have told you. I have told you I'm going to get crucified. You should accept that. क्योंकि अगर तुम्हें परमेश्वर की बातें होती तुम मेरी बात को मान लेते और उसको स्वीकार कर लेते. Now when the Lord told Peter, get behind me, Satan, you can imagine the other disciples looking at Peter and saying, you heard what he said. अब बाकी चेलों का हम कल्पना कर सकते हैं, बाकी चेले कैसे पतरस की ओर देख के और बोल रहे हो, मन में सोच रहे होंगे, अब सुना तूने प्रभु क्या कह रहे हैं. So one moment you can hear from God, next moment from the evil one. तो एक क्षण हो सकता है हम परमेश्वर से सुने और दूसरे क्षण शैतान की भी सुनने लगे. So we should be able to discern God's voice, very vital for us. तो ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को पहचान सके, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. A third voice we hear is our own spirit's voice. और एक तीसरी आवाज हम सुनते हैं जो हमारी आत्मा की आवाज है. We have a spirit in us. हमारे अंदर एक आत्मा है which has come alive after we are born again. और वो तब जीवित होती है जब हमारा नया जन्म होता है. Before we turn to Christ, we have a body, we have a mind, and we have a spirit which is cut off from God. और इससे पहले कि हम प्रभु के पास आते हैं, हमारे पास एक शरीर है, हमारा एक मन है और हमारे अंदर एक प्राण है जो परमेश्वर से अलग हुआ है. And that spirit was cut off from God. When we turned to Christ wholeheartedly, when we born again, the spirit of man came alive. और ये आत्मा जो मरा हुआ था, जब प्रभु के पास हम आते हैं तो ये मरा हुआ आत्मा प्रभु जीवित कर देते हैं. That's the meaning of being born again. और यही मतलब है नए जन्म पाने का. In John 3:6, Jesus explained what is born again. यूहन्ना 3:6 में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं नया जन्म पाना क्या है. Flesh gives birth to flesh, spirit gives birth to spirit. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है. The Holy Spirit brought the word of God to us, the gospel to us. We responded, and our spirits came alive. तब परमेश्वर का आत्मा पवित्र सुसमाचार हमारे पास लेके आया, हमारे आत्मा ने उसको स्वीकार किया और उसको ग्रहण किया. And we received Christ into our hearts. और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया. And that time, Holy Spirit came into our hearts as a deposit. और उसी क्षण बयाने के तौर पे पवित्र आत्मा जी हमारे हृदय में आ गया. So Christian has 4 entities. तो एक मसीह की 4 पहचान है. Body, शरीर, mind, उसका मन or soul,
उसका प्राण, Spirit, उसकी आत्मा and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। And the best person to confirm to us we are God's children is the Holy Spirit. और ये बात कि हम परमेश्वर की संतान है, सबसे महत्वपूर्ण जिसकी बात मानी जाए वो है पवित्र आत्मा। Romans 8:16 says, the Spirit testifies to our spirit we are God's children. और रोमियो 8:16 में इस बात का लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। Now it's possible that our own spirit speak to us. और ये बहुत मुमकिन है कि मेरी आत्मा मुझसे खुद बात करे। Differentiating between Holy Spirit and evil spirit is very easy. पवित्र आत्मा में और दुष्ट आत्मा की आवाज को पहचानना, अलग समझना बहुत आसान है। Whereas distinguishing between Holy Spirit and our own spirit can become difficult if we don't have discernment. अगर हमारे पहचान नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पवित्र आत्मा की आवाज और मेरी आवाज कौन सी है, ये इसकी परख करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। The book of Ezekiel, 13th chapter, the first 3 verses, we read about how these prophets spoke from their own spirit, not from the Spirit of God. यिर्मयाह 13 अध्याय उसकी पहली 3 आयतों में हम पढ़ते हैं कि ये जो नबी थे, भविष्यद्वक्ता थे, ये अपनी आत्मा से बोलते थे, परमेश्वर की आत्मा से नहीं बोल रहे थे। Today, many people give us advice, tell us what we should do about God's will from their own spirits. और बहुत से लोग आज भी हमारे को ये सलाह देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वो परमेश्वर की नहीं अपनी आत्मा से ही बोलते हैं। They actually they mean well, they're sincere people. और वो वैसे तो अच्छे लोग हैं और उनमें कोई हमारा बुरा करने की बात भी नहीं है। Especially when you have some problem in life, then a lot of advisors will come. Suddenly they'll appear. और खासकर जब हमारे को कोई परेशानी में से हम जा रहे होते हैं तो ये सारे अचानक से पता नहीं कहां से सब आ जाते हैं। Good friends, good Christian friends. अच्छे मसीह दोस्त हैं। They'll advise you, they'll counsel you. हमें सलाह देंगे, हमारे को बताएंगे। Sincere but sincerely wrong. वो है तो सच्चे पर बिल्कुल सच्चाई से गलत हैं। They speak their own spirits. वो अपनी आत्मा से बोलते हैं, not from the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा से नहीं बोलते। They are sincere. They don't mean to do something wrong to you. और वो है सच्चे, वो हमारा कुछ बुरा करना नहीं चाहते। Take for example Job. When he fell sick, when he had so many problems, he had 4 friends who came and advised him. उदाहरण के लिए अय्यूब को देखें, जब उसको समस्या आई, उसके 4 दोस्त आए उसको सलाह देने के लिए। 3 spoke wrongly. और 3 उसमें से बिल्कुल गलत बोल रहे थे। But they were very sincere friends. They were with him for 7 days, sharing his sorrow, whole day sitting and moping along with them. He was sulking and they were also sulking along with them. और उसके साथ बैठे रहे, 7 दिन उसके साथ रहे। जब वो रो रहा था उसके साथ वो भी रो रहे थे। But the 4th one who spoke correctly, that was Elihu. और एलीहू जो चौथा था, उसने सही बात बोली। He was the youngest. सबसे छोटा था वो। And among the 4th, the other 3 were older to Elihu. और इन चारों में से बाकी तीनों जो थे एलीहू से बड़े थे। And they all spoke wrongly about God to Job. और परमेश्वर के बारे में अय्यूब से उन तीनों ने गलत बात बोली। And Elihu waited because young person, he waited. और एलीहू सबसे छोटा था, इसलिए वो रुका रहा। Because he thought the wisdom must speak, elderly people must speak first. But then when he found out they're speaking wrongly, he spoke up correctly. पर जब वो सोच रहा था कि बड़े लोग हैं, इनको पहले बोलने दो, पर उसने जब देखा ये गलत बोल रहे हैं तो उसने बोलना शुरू किया। So sometimes the elderly people might come and give us advice because they want to give advice, but please discern correctly from God whether that's from God or not. तो कई बार बड़े लोग जो हैं हमें आके सलाह देते हैं, पर हमारे को ये बहुत जरूरी है कि हम ये पहचान करें कि क्या ये बात परमेश्वर की ओर से है। Don't dismiss it as not true, but check it out. ये ना कहें कि ये गलत है, बिल्कुल साफ मना कर दे नहीं, पर उसको जरूर जांचें। Now in 1 Thessalonians chapter 5, 19-20 we read. पहला थिस्सलुनीय 5वां अध्याय 19 और 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं। Do not quench the Holy Spirit, Paul writes. Do not put out the Spirit's fire. आत्मा को ना बुझाओ। Do not treat prophecies with contempt. और भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। Test everything, hold on to what is good. सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उनसे पकड़े रहो। There are 2 extremes to which Christians can get into when it comes to prophecy and someone's claiming to speaking God's word. तो 2 बातें हैं जहां पे एक मसीह जो है भविष्यवाणी को बातों को सुनना और उसको बताने के बारे में 2 अलग-अलग दिशाएं हो सकती हैं। One is to dismiss it as how can God speak to so and so. एक तो बिल्कुल ही नकार देना कि परमेश्वर हमसे कैसे बात कर सकता है। And when you treat prophecy with contempt, you're putting out the Spirit's fire. और जब हम ऐसे तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को हम जो है उसको नकारते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं। Because prophecy is the fire of the Spirit. क्योंकि भविष्यवाणी जो आत्मा की आग है। But the word of God is fire and the prophecy is God's word coming to us through somebody.
और परमेश्वर का वचन आग है, और परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है वो किसी और के द्वारा से वो बात हमारे पास पहुंच रही है। So one extreme is to reject it completely. Oh, prophet doesn't happen today, it's all over in the first century. That's wrong. तो एक बात तो ये हो सकती है कि भाई हम बिल्कुल ही नकार दें कि पहली शताब्दी में ऐसा होता था, अब नहीं है, ये ऐसा गलत है। Other extreme is to accept everything from a so-called great man of God as prophecy. और दूसरा उसका ये हो सकता है कि हम जो है जो भी परमेश्वर के लोग बोले सभी को स्वीकार कर लें। So test it. It's tested from God's word. तो इसको ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन से इसको परखें, जांचें। Don't simply accept it as because the great man of God said it must be from God only. तो ये ना उसको इसलिए स्वीकार ना कर लें कि परमेश्वर के बड़े दास ने बोला है, परमेश्वर की ओर से ही होगा और उसको मैं स्वीकार कर लूं। You know, a great man of God has his own spirit. He can speak from his own spirit. हर एक परमेश्वर के बड़े दास के पास भी अपनी आत्मा है और हो सकता है वो अपनी आत्मा से बोले। We are all men of a great God. We are not great men of God. और हम सब बड़े परमेश्वर के लोग हैं, हम बड़े लोग नहीं है परमेश्वर के। And therefore, anybody can make mistakes. So check everything. How do you check? Check with the scriptures. इसलिए हमें जांचना है, और कैसे जांचना है? वचन के द्वारा से जांचना है। Now, when the Apostle Paul went to Berea, the Bible talks about the people living in Berea. और जब पौलुस जो है बेरिया के जाता है, बेरिया के लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है। Acts 17:11 says, तो काम 17:11 में लिखा है, they are of noble character, कि वो जो थे भले थे, for they received the word of God with great eagerness, और परमेश्वर के वचन को बड़ी लालसा से ग्रहण करते थे, and examine the scriptures daily to see what Paul is saying was true or not. और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहते थे कि ये बातें जो पौलुस बोल रहा है ये ऐसी है भी कि नहीं। They didn't simply accept whatever he said. They tested everything. उन्होंने जो कुछ बताया गया सीधा सीधा विश्वास नहीं किया, उसको परखा उन्होंने। They checked the scriptures and probably the confirmation of the Holy Spirit in their hearts. और उन्हें पवित्र शास्त्र में ढूंढा और पवित्र आत्मा के द्वारा से फिर उन्होंने उसको जब जांच के देखा तब उन्होंने स्वीकार किया। The third channel of voice we hear is man's own spirit. तो एक जो तीसरी तरीके से हम आवाज सुनते हैं वो है मनुष्य की खुद की आवाज। And the fourth is the mind, the delusions of the mind, dreams and visions, so-called visions and dreams. Every vision is not from God. और चौथा होता है कि हम जो भ्रम में सपने देखते हैं कि ऐसा हो गया, वो हर एक सपना जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है। When Jeremiah is prophesying, there are other people are prophesying. They're prophesying the delusions of their minds. और जब यिर्मयाह के समय दूसरे लोग जो भविष्यवाणी कर रहे थे, वो अपने मन के भ्रम से भविष्यवाणी कर रहे थे। Book of Jeremiah, 23rd chapter, from verse 16 and also verses 28 and 26 and 29, we read about people who are saying, I had a dream, I had a dream. और यिर्मयाह 23वां अध्याय उसकी 16वीं आयत और 28वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं कि भविष्यवाणी करते हैं, वो कहते हैं उन्होंने दर्शन सपना देखा। So I'd like you to read in Hindi, book of Jeremiah, 23rd chapter, verses 16 to 22. पढ़ेंगे यिर्मयाह 23वां अध्याय 16 से 22वें आयत तक। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनमें ये भविष्यद्वक्ता सदा रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? वो किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। Okay, now please read now verses 26 to 29. 26 to 29.
और 26 से 29वीं आयत भी पढ़ लेंगे। जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता है, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरे प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। Praise God. अपने अपने सपनों को बताते हैं. They talk to their own dreams and they say the dream is from God and they so-called prophesy. और वो अपने मन से स्वप्न को देखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें सपना दिया, बताया है और उसको बताते हैं। Many people think the dreams they have is all from God. It's not always like that. और बहुत से लोग सोचते हैं सपना आया ये परमेश्वर की ओर से है, ऐसा नहीं है। So there are many channels through which we hear voices, but when you have discernment, you can discern God's voice. It's vitally important. तो बहुत जगह से हम आवाजों को सुन सकते हैं, पर ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की ओर से कौन सी आवाज है, इसकी परख होना बहुत महत्वपूर्ण है। When you have this gift, we can discern and we can know God more and more. तो जब हमारे पास ये दान होगा तो हम परमेश्वर की आवाज को पहचान सकेंगे और परमेश्वर को और अधिकाई से जान सकेंगे। Because God reveals himself through the scriptures. क्योंकि परमेश्वर जो है अपने आप को प्रकट करता है अपने वचन से। This gift is very, very important for every Christian because every Christian wants to know God more and more. Don't you want to know God more and more? और ये हर एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है इस दान का होना कि परमेश्वर को जाने, और क्योंकि हम सब की लालसा यही है कि हम परमेश्वर को और अधिकाई से जाने। So if you have discernment to know what is from God, what is not from God. तो हमारे पास ये परख होनी चाहिए कि परमेश्वर की ओर से क्या है और परमेश्वर की ओर से क्या नहीं है। What's from God we receive, what is not from God we reject completely. जो बात परमेश्वर की ओर से है उसको हम स्वीकार करते हैं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको हम बिल्कुल नकार देते हैं। In that process we grow in the knowledge of God. और इस प्रक्रिया में हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं। So we should read the Bible and hear the Bible, not to know the Bible, but to know the God of the Bible, his nature, his personality. तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें ये जानने के लिए नहीं कि बाइबल का परमेश्वर क्या है, पर परमेश्वर को जानने के लिए जो बाइबल का परमेश्वर है, बाइबल को जानने के लिए नहीं पर बाइबल के परमेश्वर को जानने के लिए पढ़ें। So what happens when you know God more and more is we manifest the love of God to everybody, including enemies. तो जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं, अपने दुश्मनों पे भी प्रकट करते हैं। In John 17:26, the Lord told the Father in heaven when he prayed. और यूहन्ना 17वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अब जब अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की तो ये बात कही, I have made you known to them and I will continue making you known to them. कि मैंने तेरा नाम उन पर को बताया और बताता रहूंगा। That the love you have for me will be in them and I myself will be in them. कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें भी रहे और मैं उनमें रहूं। And today, especially in today's context, we all need discernment because we hear so many voices, so many preachers all over the world, and with Zoom we can go to any part of the world and listen, but you must discern correctly what is from God, what is not from God. Then only you will grow in the knowledge of God. क्योंकि आज के समय में इतनी आवाजें सुनते हैं, हम बहुत सारे संदेश सुनते हैं, जूम में भी हम सारे संसार में कहीं भी जुड़ सकते हैं, तो पर इसमें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर ये परख हो कि कौन सी आवाज परमेश्वर की ओर से है, कौन सी आवाज परमेश्वर की ओर से नहीं है। When you're sincere before God, there's nothing to worry about hearing wrong voices because Holy Spirit guides us correctly. He will lead us into all truth. और जब हम परमेश्वर सामने सच्चाई से चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे को बताता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे को सब सच्चाई की बातें बताएगा। 1 John 2:27 says the anointing will teach us all things. पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है कि वो परमेश्वर की आत्मा का जो अभिषेक है वो हमारे को सारी बातें बताएगा, सच्चाई की बात बताएगा। John 16:13 says the spirit of truth leads us into all truth. और यूहन्ना 16:13 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन का जो आत्मा हमारे को सब सच्चाई की ओर लेके जाएगा। We don't have to worry about it because our God is a faithful God and we are sincere, he will not let us make mistakes. और हमें इसकी चिंता नहीं करना क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जब हम उसके साथ सच्चाई से चलेंगे तो वो अपनी आत्मा का दान हमारे को अपनी बातें हम पे प्रकट करेगा। In 1 Samuel 2:9 we read about how Hannah says,
So God guards the feet of his saints. He guards the feet of his saints. पहला शमूएल 2:9 में हमना प्रार्थना करती है कि वह अपने भक्तों के पांवों को संभालता है, संभाले रहता है. So when you're sincere before God, nothing to worry, but please ask and receive the gift of discerning of spirits. Vitally important for us to know him more and more. तो परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलते रहें और परमेश्वर से भविष्य आत्मा दानी की आत्मा और बल्कि और ये परख की आत्मा का दान मांगे ताकि हम उसको और पहचान के उसकी समानता में बदलते जाएं. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.